A very good afternoon to all of you. I welcome you back to my channel that is Venus Law Classes. So last की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पॉक्सो दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. इसमें हम मेजरली 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज the first point is related to what are the objectives of the act, why the law it came into existence, because there was a need to give special protection to the children when they file a case against sexual offenses that happen against them. Right. Secondly, we have talked about non-disclosure of the identity of victims of sexual offense. Herein, I compared it with the provisions of IPC as well, which lays down the general scheme. ये हमने last बात किया था. And then we refer to one judgment, that is skin to skin judgment, very relevant judgment on the point of sexual assault, how the Honorable Supreme Court has construed the word sexual assault. So they have given it a purposive interpretation so that आप इसके जो एक्ट हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ. So the court applied the rule of purposive interpretation. In this video also we're going to talk about a very important judgment of the Honorable Supreme Court, that is ERA versus State NCT of Delhi. So with this I start with the video. So definition of child. So before starting I would like to tell you the issues that are there in the case and what are the provisions involved, etc. So this case citation I'll be giving to you, just wait for a while. So this case, it is dealing with section number 21D, that is the interpretation of the word child. So firstly, please see how they are defining the word child. Child means any person below the age of 18 years. So when we proceed with the case, please keep in mind this definition that is there on the screen. So please take down the citation of the case. It is ERA versus State NCT of Delhi 2017. Let me just tell you in brief what was the issue here. See, here there is a petition before the High Court. आपने High Court में move किया है. So mother करती हैं victim की. So here victim, she is biologically, if we refer to her biological age, so that is near about 33 years of age, but she is a mentally retarded victim. ये जो यहाँ पर है, ये victim जो है वो mentally retarded है, मतलब जो उनका mind है उसका proper mental development नहीं हो पाया है. So अगर हम देखें उनका IQ etc check करके, so whatever the techniques that are prevalent to check the mental level, so it is around 5 to 6 years of child. तो जैसे 5 से 6 साल के बच्चे का होता है माइंड, उनका मेंटल स्टेट ऐसा है. So यहाँ पर मदर शी इज मूविंग टू द हाई कोर्ट एंड शी इज सेइंग, शी इज प्रेइंग बिफोर द हाई कोर्ट कि जो मेरी चाइल्ड है, उनकी जो बेटी है, उनका जिनके अगेंस्ट रेप हुआ है, सो दैट शुड बी ट्राइड अंडर पॉक्सो. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई पॉक्सो? सो अगर आप पहले की वीडियोस देखोगे, सो आई टोल्ड यू दैट अंडर पॉक्सो वी आर क्रिएटिंग अ वेरी कंजीनियल एनवायरमेंट फॉर द चाइल्ड, कि बिकॉज आपको पता है चाइल्ड को ये सब जो कोर्ट एक्सेट्रा होते हैं उनसे डील करना, वहां पर अपनी टेस्टिमनीज देना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू डू दैट. एंड when we are talking about a child of a sexual offense, that is even more harder. So यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव हमारा थोड़ा सा काम आएगा. So इन्होंने कहा कि जो मेरा चाइल्ड है उसका केस इट शुड बी ट्राइड अंडर पॉक्सो, वो पॉक्सो में ट्राई होना चाहिए. तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने इनका जो ये था जो इन्होंने बोला कि मूव किया हाई कोर्ट पर, तो इन्होंने हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, सेइंग दैट कि यहाँ पे हम एक लेडी जज को अपॉइंट कर सकते हैं, बट दिस केस इट कुड नॉट बी ट्राइड अंडर पॉक्सो. नाउ द मैटर इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट ने इसको देखो, यहाँ पर यू कैन सी इन द स्क्रीन कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. नाउ द अपील इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो नाउ व्हाट इज द इशू इन्वॉल्व, कि जो आप चाइल्ड की डेफिनेशन कर रहे हो डिफाइन, सो इट शुड इंक्लूड दोज पर्सन्स ऑल्सो जिनका मेंटल एज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है. क्या हम उनको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं? तो अगर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, इट शुड एनगल्फ एंड एम्ब्रेस
in its connotative expense, mental age of a person or age determined by prevalent signs etc. So agar suppose you have crossed the biological age but your mental age is below the age of 18 years, can you be covered under this category of child, and can POXO be applied to you? This is the question, very interesting question before the Honorable Supreme Court. So whether we can resort to purposive interpretation, क्योंकि मैंने जो भी आपको PCMMBP केस कराया था सेक्शन 9 पे, I resorted to purposive interpretation. Then sexual assault में भी we resorted to this interpretation, rule of interpretation. Now can we apply this rule? So I told you purposive interpretation we apply where there is an ambiguity in the provision, कि जहां पर provision में ambiguity होती है वहां पे judges can apply this rule. Otherwise we follow the separation of powers. अगर मैं यहाँ पे नरीमन जस्टिस को कोट करूं तो उन्होंने क्या बोला है इस केस में, ultimately there is a Lakshman Rekha and the judges they should not पास दैट, वो उसको क्रॉस ना करें, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें. सो जस्ट बिकॉज यू आर इंटरप्रेटिंग, तो आप ऐसा ना कर दो कि यू एंड अप एट लेजिस्लेटिंग, बिकॉज दैट इज द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, राइट? सो दैट इज द थिंग. फिर यहाँ पर काउंसिल ने अपना जो एपेलेंट थी बिफोर द हाई कोर्ट, उन्होंने बोला कि आईपीसी में भी तो ऐसे प्रोविजंस हैं, दैट इज टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन who are not having the sufficient understanding and the maturity. So अगर हम आईपीसी के भी प्रोविजन देखें तो स्पेशल प्रोटेक्शन हम देते हैं और उनके लिए अलग से प्रोविजंस हैं, जस्ट बिकॉज दे लैक मेच्योरिटी एक्सेट्रा. तो यहाँ पर बोला कि आईपीसी में ऐसा स्कीम में दिया गया है. सो इट इज नॉट द कोर्ट हु इज लेजिस्लेटिंग, बट विद रिस्पेक्ट टू पॉक्सो इट इज नॉट दैट. इवन आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, आपने सब कुछ लिखा, still the parliament find it proper that yes we should decide the age, कि उन्होंने 18 फिक्स कर दिया कि if you are under the age of 18 years then we are going to apply this law, otherwise not. फिर हम स्पेशल लगाएंगे लॉ, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पर्पसिव नहीं लिटरल रूल को लगाया. लिटरल, दैट इज द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, and the Honorable Supreme Court held that in these kind of cases where there is no ambiguity in the provision, हम वहां पर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को रिजॉर्ट नहीं कर सकते. मोर ओवर, जो आपने एज डिटरमिन करी है अंडर पॉक्सो, इट इज हैविंग अ नेक्सस विद द एज ऑफ कंसेंट, जो आपकी लीगल एलिजिबिलिटी है टू गिव कंसेंट, तो इसका नेक्सस है इससे. मोरओवर, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स हैं, पहली बात तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते मेंटली इल, बिकॉज दोनों अलग बातें होती हैं. सो मेंटली रिटार्डेड की भी डिग्री हो सकती है. सो देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला कि कौन सा पर्सन कैसे होगा, और हम मतलब कोई वो नहीं है, देयर इज नो यार्डस्टिक कि हम इसको कर सकते हैं कि कितना मेंटल रिटार्डेशन है एक्सेट्रा. सो मेंटली इल एंड मेंटल रिटार्डेशन में भी डिफरेंस है, तो दैट इज वाई हम इसको इस डेफिनेशन के स्कोप में नहीं ले सकते. सेकेंडली, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो यू कैन रीड इट वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन रीड इट वंस. सो बायोलॉजिकल एज इज द सेफेस्ट यार्डस्टिक, लेकिन हम मेंटल रिटार्डेशन को नहीं ले सकते बिकॉज द डिग्रीज आर डिफरेंट. Parliament has not included the mental age. Moreover, there are various provisions under the CRPC itself which are talking about special provisions when the person, जो भी आपकी victim है, when she is mentally disabled, या फिर उनका जो भी mental faculties हैं अगर वो affected होती हैं, so there are special provisions. तो we may deal those persons under the relevant provisions of CRPC, हम उनमें deal कर सकते हैं. Now, अब यहाँ पे देखो, this is very important term that they are using. It cannot be ready tool in the hands. They are talking about purposive interpretation. It cannot be ready tool in the hands of a judge to assume the role of creative constructionist personality when the provisions are clear. Hence,
यहाँ पर मेंटल एज ऑफ पर्सन्स इट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, बिकॉज ये जो वर्ड्स एज है, ईयर है, इसको हम और इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते कि विद इन दिस एम्बिट, विद इन द एम्बिट ऑफ इट वी विल इंक्लूड द मेंटल एज ऑफ द पर्सन ऑल्सो. सो दिस वॉज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिस्कशन. तो ये नहीं हो सकता. सो वी अप्लाइड ओनली द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. सो अगर अब मैं आपसे पूछूं आफ्टर रीडिंग दिस केस, क्या पॉक्सो में जो चाइल्ड है उसमें क्या जिनकी मेंटल एज अगर 18 ईयर्स से कम होती है, क्या हम उनको इंक्लूड करते हैं? सो आंसर इज नो. देयर इज अ स्पेसिफिक जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. यू हैव टू रेफर टू दिस जजमेंट. आई होप द डिस्कशन इज क्लियर. Thank you so much. So please stay tuned because in the Rajasthan judiciary POXO is there in the syllabus. आपके syllabus में POXO आता है. So you should be able to write good answers with the help of the judgments etc. आप प्री में भी अच्छा कर पाओ. So stay tuned. राजस्थान का notification भी आने ही वाला है. So thank you so much. Bye. Take care.